وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ہیلو ہاں نور حسن بھائی۔ جی منصور دیوبندی صاحب۔ ہاں جی 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 بولیے، حال چال ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہیں۔ ویڈیو دیکھا آپ نے اپنا؟ مطلب پہلا والا نہیں مل رہا ہے، دوسرا پارٹ تو مل رہا ہے، پہلا والا نہیں مل رہا ہے۔ پہلا والا نہیں مل رہا ہے؟ نہیں کیوں؟ نہیں ڈالے ہیں کیا اس کو؟ ڈالا ہے بھائی، ڈالا ہے۔ پہلے ہی والا ڈالا ہے، بعد میں دوسرا والا ڈالا ہے۔ تو پہلا والا نہیں مل رہا ہے، اس لیے تو جناب آپ میرے چینل پہ ڈائریکٹ جائیے، جی وہاں سے پارٹ نمبر 2 پارٹ نمبر 1 کر کے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے چینل پہ ڈائریکٹ جائیے، اچھا نہیں ویسے ڈائریکٹ میرے چینل پر جا کر آپ اپنے پارٹ نمبر 2 کے نیچے دیکھیے، ٹھیک ہے؟ آپ کا پارٹ نمبر 1 پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں 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 جا کے دیکھ لو، مل جائے گا۔ اور باقی کوئی شکایت؟ نہیں کوئی نہیں مل رہا ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس فون کیے، تو کیا شکایت رہے گا؟ یہ نور حسن کوئی دھوکہ دھڑے والے کام نہیں کرتا ہے۔ نہیں مطلب آپ ڈالے ہیں نا بھائی؟ بالکل ڈالا ہے، آپ دیکھ لیجیے جا کے، اور آپ کے اس ویڈیو میں بہت سارے کمنٹ بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہاں آپ کی تعریف کر رہے ہیں لوگ۔ اچھا ہم کو تو اس کو ہوئیے نہیں، ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہے، مل کے نہیں کر رہے ہم۔ جا کے دیکھ لیجیے، آپ کی تعریف کافی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں مطلب کیا سرچ کرنا پڑے گا؟ ارے یار میرے چینل پہ جائیے نا ڈائریکٹ۔ ہاں نور حسن رضوی، نور حسن رضوی نیٹ ورک۔ اچھا ہاں اس کو نکالیے، نکالنے کے بعد ڈائریکٹ چینل پہ جائیے، ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹ جب چینل پہ جائیں گے تو 4-5 ویڈیو کے بعد آپ ہی کا ویڈیو پڑا ہوا ہوگا شاید۔ ارے آپ کو تو پہچان ہو جائے گی آپ کا فوٹو دیکھتے ہی۔ ہاں وہ تو دوسرا پارٹ تھا نا، اس میں تو فوٹو لگا ہوا تھا۔ پارٹ نمبر 2 کے فوراً نیچے تمہارا ہی ہے، کیونکہ میں نے الگ نہیں کرا، اب یہ تیسرا والا الگ ہو جائے گا، کیونکہ اتنی آڈیو پڑی ہوئی ہے میرے پاس کہ میں بنا نہیں پا رہا ہوں، میں اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں۔ ہاں کیونکہ اتنے دیوبندی بوکھلا جاتے ہیں، اتنے دیوبندی مجھے کال کرتے ہیں کہ بہت زیادہ۔ آپ تو اور زیادہ بوکھلا جاتے ہیں۔ میں دھوتا ہوں دیوبندیوں کو، بوکھلاتا نہیں۔ جب مجھے کوئی برا کہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرے بزرگوں کو برا کہے تو آگ لگا دیتا ہوں۔ جی صاحب، ہاں میں پھر چھوڑتا نہیں، میں ایسا اس کو ننگا کرتا ہوں، ایسا ننگا کرتا ہوں کہ اس کی 7 جنم تک کی پیڑیاں یاد کریں گی کہ ہاں کوئی ڈرائیور تھا سنیوں کا۔ ہاں میں بدن پہ دیوبندیوں کے چڈی بنیان تک نہیں چھوڑتا، ننگا کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ننگا کرتا ہوں۔ لوگوں میں زلزلہ پیدا ہے، دیوبندیت کے بڑے بڑے جو مفتی ہیں نا، زلزلہ پیدا ہے ان میں میرے نام سے۔ نہیں یہ غلط ہے کہنا آپ کا۔ پھر وہی بات، آپ کسی اپنے مفتی کو چنیے، مجھ سے بات کرانے کے لیے اسے تیار کیجئے۔ ہے کوئی دیوبندی مفتی جو الحمدللہ ہم سنی حنفی بریلویوں کو غلط ثابت کر دے؟ آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ، انشاءاللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ تو بھائی ہم تو جو آپ کو سوال کیے تھے وہ تو آپ دے بھی نہیں کیے اس کا جواب۔ میں نے تو آپ کو جواب دیا نا کہ وہ پوری تحریر بھیجیے، اور وہ آپ نے کہا کہ وہ حدیث ہے۔ جب حدیث ہے تو اعلیٰ حضرت پر وہ اعتراض ہی نہیں ہے، پھر تو حضور پر اعتراض ہو گیا۔ آپ نے تو حضور کی حدیث پر اعتراض کر دیا جناب۔ میں نے کہا ہے کہ وہ کس طرح سے لکھی ہوئی ہے، کیا میٹر ہے، کیا لکھا ہوا ہے، کیا بات ہے، اور وہ جو رمضان کا آپ چاند بتا رہے تھے اس کا کیا میٹر ہے، پوری تفصیل آپ نے بھیجی کب؟ آپ پوری تفصیل بھیج دیجئے، کیونکہ دعویٰ آپ نے کیا ہے، دلیل آپ پیش کریں گے۔ دعویٰ جو کرتا ہے دلیل وہ دیتا ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ آپ کا ہے، دعویٰ آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کہا کہ معاذ اللہ احمد رضا جھوٹا ہے، اس نے یہ جھوٹ لکھ دیا، تو آپ نے اعلیٰ حضرت کے اوپر جو طنز کیا ہے وہ غلط طنز کیا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کی حدیث ہے، حضور کی حدیث کو نقل کیا ہے۔
تو جب حضور کی حدیث کو نقل کیا ہے تو پھر معاذ اللہ تم حضور کو جھوٹا بتانے کی کوشش کر رہے ہو جناب. نہیں دیکھیے ہم یہی بولے نا کہ بھائی اگر حدیث ہے کہ نہیں، اگر نقل کر رہے ہیں تو حدیث تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ نے کہا ہے نا کہ حضور کی وہ حدیث ہے. ہاں کہا ہے. جب کہا ہے آپ نے تو اعلیٰ حضرت کے اوپر جو آپ طنز کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. پھر دوسری بات میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں کیا میٹر ہے، کیا لکھا ہے. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں. اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 10 محرم الحرام کو بروز جمعہ ہاں قیامت آئے گی. ہاں سنا ہے نا، یہ حدیث ہے نا. ہاں اب سے کئی سال پہلے کئی مرتبہ کئی سال پہلے جو ہے، مطلب کئی مرتبہ نہیں، مطلب کئی سال کو میں بول رہا تھا. تو کتنے سال ہو گئے ہوں گے یار، مجھے خود اندازہ نہیں ہے. کم سے کم 10-12 سال کے آس پاس کی تو بات ہو ہی گئی ہوگی. اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. ہاں بروز جمعہ پڑا تھا. محرم الحرام کی 10 تاریخ پڑی تھی. محرم کا دن تھا، ہاں محرم تھا. 10ویں تاریخ تھی، جمعے کا روز تھا، جمعے کا دن تھا. ہاں کیا قیامت آئی؟ نہیں بھائی اب یہ دیکھیے میرے آقا نے صرف نشانیاں بتائی ہیں. میرے آقا سنیے بھائی جان، میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں کہ قیامت کیسے کب آ سکتی ہے، کیسے آ سکتی ہے. مگر چنندہ اس لیے نہیں بتایا تاکہ جو دیکھیے ایک بات اور بتا دوں کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے اتنا وزن دیا ہے، اتنا بوجھ ڈالا ہے جتنے کی اس کی حیثیت ہے، جتنے کی اس کی اوقات ہے. ہاں ہے یا نہیں؟ ہاں اللہ والوں کو معلوم ہے کہ ہمارا وصال کب ہوگا، اور وہ بتا بھی دیتے ہیں لوگوں میں ظاہر بھی کر دیتے ہیں کہ میرا وصال جو ہے فلاں وقت ہوگا، فلاں تاریخ کو ہوگا. ہاں مگر قرآن فرما رہا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. سمجھے؟ مگر اللہ تعالیٰ جسے بتا دے اسے ہو جاتا ہے. ہاں کہا ہے نا، جسے اللہ بتا دے تو ہو جائے گا. ہاں تو میرے آقا قیامت کی تاریخ جانتے ہیں، ہاں وقت بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ جانتے ہیں، مگر امت کو نہیں بتایا. کیونکہ اس میں جو ہے حضور نے اس میں جو فرما ہے دیا کہ مطلب جمعہ محرم کا دن پڑے گا، تو جب بھی ہوگا تو وہی دن جمعہ محرم میں ہی ہوگا. خالی محرم کا ہی نہیں بتایا، بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں جناب. کہاں ہو آپ؟ بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں. اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی. 10ویں تاریخ بھی ہو سکتی ہے، سمجھ گئے؟ 10ویں تاریخ محرم الحرام کا مہینہ بروز جمعہ، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. ہاں تو لیکن جیسے اگر جب قیامت اگر ہوگی تو وہی دن ہوگا. ہاں یہ اب جو بھی ہو، یہ ہو یا کیا ہو، پوری تحقیق علماء بتائیں گے. مگر جو میں نے سنا ہے اس کو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو میں نے اس میں ہے کہ دین متعین نہیں ہے کہ مطلب کہ فلاں اس دن میں ہو جائے گا، لیکن یہی دن ہوگا. سنیے دین متعین نہیں ہے. ایک منٹ، دین متعین نہیں ہے. دین یا دن نہیں مطلب عیسوی سن بول رہے ہیں. دن نا، عیسوی سن بھائی، عیسوی سن بھی نہیں بتائی ہے اور دن بھی نہیں مقرر کیا ہے. وہ اس لیے اس میں حکمت ہے. مہینہ محرم کا ہے. سنیں اس میں حکمت ہے. ہاں میں مثال سے سمجھا دوں آپ کو. ہاں بتائیے. کسی انسان کو یہ پتا چل جائے کہ میری عمر اتنی ہوگی، 20 سال، 30 سال، 25 سال، 35 سال، اور اس نے اپنی زندگی میں کچھ سپنا سوچا ہو، اور اسے اپنے موت کا بھی علم ہو جائے کہ میری فلاں تاریخ میں موت ہونی ہے، فلاں دن موت ہونی ہے، تو کیا وہ شادی کرے گا کسی عورت سے؟ مطلب اسے پتا چل جائے کہ شادی کے دوسرے ہی دن میری موت ہو جانی ہے. یا کوئی اس کا بڑا سپنا ہے کہ میں فیکٹری کوئی بناؤں گا، اور فیکٹری بناتے ہی میری موت ہو جائے گی، تو کیا وہ فیکٹری بنائے گا؟ اگر اسے صحیح معلوم ہو جائے کہ ہم مطلب کہ بنائیں گے، اس کے 1 روز 2 روز بعد ہم انتقال کر جائیں گے، تو پھر کہے بنائے گا؟ موت کی بات چل رہی ہے کہ موت کا علم اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میری موت اتنے دن میں ہوگی یا میرا موت کا وقت یہ ہے، کیا وہ اس کام میں ہاتھ ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا. ایک سائنسدان ہے، ایک انجینئر ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی مشن کو لے کے چل رہا ہے،
हाँ ठीक है, और वो मिशन लंबा है, हाँ ठीक है, ठीक है। और वो मिशन वही जो है पूरा करेगा, उसके बगैर पूरा नहीं हो सकता। और उसे फिर ये भी मालूम हो कि मेरे मिशन पूरा होने से पहले पहले मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत आ जाएगी, तो क्या वो उस मिशन को चालू करेगा? चालू हेलो, करने जैसा रहेगा तब तो करेगा, नहीं फिर तो वही नहीं बात, जब करेगा। उसे मालूम है कि मैं ये मिशन उठाऊंगा और मेरी जिंदगी इतनी नहीं है, हम्म मेरा मिशन पूरा नहीं हो पाएगा मगर मैं मर जाऊंगा, हम्म। तो क्या वो उस मिशन को हाथ लगाएगा? नहीं नहीं लगाएगा। अच्छा, कोई फैक्ट्री बननी है, ठीक है, और उसको ये मालूम है कि मैं जब ये फैक्ट्री बना रहा हूं तो इसमें इतना टाइम लग जाएगा, इतना वक्त लग जाएगा, हाँ और फैक्ट्री तैयार होने से पहले पहले, फैक्ट्री चलने से पहले पहले मैं मर जाऊंगा, हाँ। क्या वो फैक्ट्री में पैसा लगाएगा? नहीं नहीं लगाएगा। कोई पुल बनने का है, अब आ जाइए दुनिया पर, कोई पुल बन रहा है, सरकारी पुल है, हाँ। ठीक है, कोई सरकारी पुल है, आवाम जो है उससे परेशान है, उस पुल की वजह से तकलीफ होती है, कहीं घूम के जाना पड़ता है, हाँ लोगों की आसानी के लिए पुल बनाया, हाँ। मगर उस पुल में 5 साल लग रहे हैं, पुल में 5 साल लग रहे हैं, या 2 साल लग रहे हैं, या 3 साल लग रहे हैं, और उससे पहले पहले कयामत आ जानी है। पुल में 5 साल लग रहे हैं या 3 साल लग रहे हैं, मगर कयामत 1 साल बाद ही आनी है, तो क्या वो पुल बनेगा? क़यामत आएगी ऐसा तो कोई सोच के नहीं बनाएगा पुल। फिर वही बात, मैं अपने नबी की ना बताने वाली हिकमतें बता रहा हूँ, तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आ रही है जनाब। ठीक है, नहीं बनाएगा। सुन रहे हैं जी, काहे चुप हो गए? तो बोलिए। हेलो। मैं बस खाली इतना पूछ रहा हूँ, नहीं बनाएगा ना? नहीं, क्यों? जब क़यामत ही आ जाएगा तो फिर बना के क्या करेगा तब? मैं पूछ रहा हूँ कि पुल बनने जा रहा है, मगर ये मालूम होता कि इस पुल के बनने में तो 5 साल लगेंगे या 3 साल लगेंगे, मगर कयामत 1 साल बाद ही आनी है और तय है, हाँ। तो फिर क्या वो उस पुल को बनाएगा कोई? नहीं। क्यों नहीं बनाएगा? क्या फायदा होगा? जब क़यामत ही आ जाएगा तो उससे तो कुछ फायदा नहीं होगा उसको बनाने से। हाँ, तो ये हिकमतें हैं या नहीं है, ये बताइए आप। हाँ है ना? है। हाँ, तो ये कुछ हिकमतें होती हैं, कुछ बातें हिकमतों के तहत नहीं बताई जाती हैं। हाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लाठी थी जी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिमुल गैब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज का जानने वाला है, हाँ मगर फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहा है कि ए मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरे मौला परवरदिगार आलम, या अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरे हाथ में जो है ये मेरी लाठी है, मैं इससे अपने बकरियों के लिए पत्ते तोड़ता हूँ, पत्ते झाड़ता हूँ। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लाठी है और ये अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ते हैं? कैसे नहीं, एकदम जानते थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों पूछा यार? ये तो नहीं पूछना चाहिए था ना, मालूम था तो। नबी के लिए तो कहते हैं अगर मालूम होता तो पूछते नहीं, मगर रब ने क्यों पूछा? यही देखिए, अब तो भाई वो पूछ भी सकते हैं। हिकमत है ना इसमें कोई? हाँ है, क्या हिकमत के तहत मेरे नबी किसी से कुछ नहीं पूछ सकते? एकदम पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरे नबी से किसी ने कोई सवाल किया, मेरे नबी ने जवाब ना दिया, कोई चीज ऐसी थी जिसका जवाब देना, मतलब एक हुआ भी है कई मर्तबा ऐसा कि सहाबा इकराम बार बार सवाल कर रहे हैं, हुजूर ने इसको नागवार फरमाया कि जब मैं खामोश रहूं, जवाब ना दूं तो खामोश हो जाया करो, मैं जो कह दूंगा वही हो जाएगा। एक सहाबी कह रहे थे, या रसूलल्लाह, क्या हज हर बार फर्ज है, हर साल फर्ज है? मगर हुजूर जवाब नहीं दे रहे थे, फिर बाद में समझाया। ठीक है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कानून साज बना के भेजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। मेरे नबी जो फरमा दें वो हो जाता है, क्योंकि अल्लाह वाले जो होते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बात को रद्द नहीं फरमाता है। नहीं, ये बात मानते हो ना? मैं देवबंदियों की किताब से ये साबित कर दूंगा इंशाअल्लाह। हम तो बोल रहे हैं भाई, मानते हैं, कैसे नहीं मानेंगे? जी, तो मेरे दोस्त देखो, जो जिसका होता है उससे मोहब्बत करता है, और जो जिसका दुश्मन होता है उससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि नफरत करता है और उसकी तौहीन करता है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात बोलेंगे तो वही बात बोलेंगे जो कि होगा, सही होगा। तो मेरे नबी ने जवाब नहीं दिया उस बात का, समझे, मगर सहाबी रसूल बार बार कह रहे थे, पूछ रहे थे। तो हुजूर ने फिर बाद में फरमाया कि जब मैं कोई बात का जवाब ना दूं तो खामोश हो जाया करो, बार बार ना पूछा करो एक ही सवाल को। अगर मैं कह देता कि हाँ तो ये फर्ज हो जाता हर साल, तो क्या गरीबों के लिए मुश्किल खड़ी नहीं हो जाती? हाँ, कैसे नहीं। हैं? हाँ, गरीब के भाईजान लिए बहुत ऐसी बातें हैं। देखो भाई, मैं बता दूं आपको कि आप थानवी जी से मोहब्बत करते हो, थानवी जी की तारीफ करोगे। मैं आला हजरत से मोहब्बत करता हूं तो आला हजरत की तारीफ इसलिए नहीं करता कि वो बरेली शरीफ के पठान हैं या वो मुसलमान हैं, ठीक है। मैं इसलिए उनसे मोहब्बत करता हूं कि मेरे नबी के गुलाम हैं, मेरे नबी की वकालत की है उन्होंने। हर वक्त इस दुनिया से रुखसत होते समय भी मेरे नबी का पैगाम दिया। मेरे नबी की शान आजमत क्या है। नबी का जो दुश्मन हो उससे अगर जर्रा बराबर भी कोई तौहीन देखो, उससे जो है ऐसे अपने दिल से निकाल के फेंक दो उसको, जिस तरह जो है दूध से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है। समझे जनाब जी। हाँ, हम इसलिए आला हजरत से मोहब्बत नहीं करते कि वो हमारे करीब के हैं या हमारे शहर के पास के हैं, इसलिए मोहब्बत नहीं करते, बल्कि हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो मेरे नबी के सिपाही हैं, मेरे नबी के गुलाम हैं। मेरे नबी की शान व आजमत उन्होंने हमें बताई है। जब इन देव के बंदरों ने ईमान व अकीदे पर हमला किया, मुसलमानों के ईमान पर डाका डाला, तो मेरे आला हजरत ने खड़े होकर जबरदस्त रद्द किया। और ऐसा रद्द किया कि दुनियाए देवबंदियत में जलजला पैदा हो गया है। और खाली दुनियाए देवबंदियत में नहीं, हर बद मजहब के अंदर, हर बद मजहब में, हर बद मजहब की जमात में, मैं जमात की बात कर रहा हूँ, हर बद मजहब, जितने भी बद मजहबी जमातें हैं, सब की जो है आला हजरत ने बोलती बंद कर दी है। अच्छा, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को तो आप जानते होंगे। हाँ, नाम सुने हैं। अकबर का भी नाम सुना होगा, दीन इलाही जिसने इजाद किया था। हाँ, सुने हैं। दीन इलाही किस नाम से था? अल्लाह के नाम से था ना दीन इलाही। हाँ, अल्लाह के नाम से रखा था ना। हाँ हाँ। अगर वो किसी और के नाम से लेकर आता, किसी और ऐसा कोई हिंदू वगैरह का जैसे नाम होता, तो क्या कोई मानता उसको? नहीं ना। नहीं। मगर दीन इलाही के नाम से बहुत सारे लोग जो है उसकी तरफ रुजू होने लगे, उसको खुदा मानने लगे। वो अपना खुदाई का दावा कर रहा था, अकबर। हाँ हाँ हाँ, समझे, अपने आप को रब कहला रहा था। अच्छा। वहदानियत पर उन्होंने ऐसा रद्द किया है कि कील ठोक दी है उसके पूरे बातिल मजहब में। उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे हमला किया था। उनकी आप किताबें उठा के देखो, वहदानियत के ताल्लुक से इतना अंबार आपको मिलेगा, इतना जखीरा मिलेगा, इतना मवाद मिलेगा कि दंग रह जाओगे। मगर वहीं दूसरी तरफ मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत पर हमला किया, डाका डालने की कोशिश की इन कमीनों ने मोमिनों के ईमान पर। मुसलमानों से ईमान छीनने की कोशिश की गई और की जा रही है आज तक। मेरे आला हजरत ने मुसलमानों को बता दिया कि मुसलमानों, कि अगर अपने नबी की तरफ से किसी से हुजूर के निस्बत किसी से भी जर्रा बराबर अगर गुस्ताखी देखो तो उससे जुदा हो जाओ और उसकी मोहब्बत को दिल से ऐसे निकाल दो जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, चाहे वो तुम्हारा कितने ही अजीज क्यों ना हो। समझे भाई? हाँ भाई। डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सैयदी हमने इसलिए बोला कि हमने उनको अपना सरदार माना, अपना बड़ा माना, अपना बुजुर्ग माना, अपना रहबर माना। हाँ जी, सैयद के माना आता बड़ा। हाँ हाँ। अच्छा, बार बार किसी का कॉल आ रहा है, पता नहीं कौन है। अच्छा ठीक है, तब रखिए। वही हम पूछने के लिए लगाए थे और कोई बात नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसे तो हम बहस
हमसे होगा नहीं, कहे कि कोई हमसे बात पढ़ा नहीं, लिखा नहीं बहस की बात नहीं है। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों की इस्लाह चाहता हूँ। मैं किसी को बदजन नहीं करना चाहता, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मैं किसी की तौहीन नहीं करना चाहता, मैं किसी की शान व अजमत पर हमला नहीं करता, मैं किसी की जात पे नहीं बोलता। जब कोई छेड़ता है तो मैं छोड़ता नहीं, समझे भाईजान? हाँ हाँ हाँ। जब कोई छेड़ता है तो मैं छोड़ता ठीक है, नहीं। कभी वैसे ही कुछ बात करना होगा तो कॉल कर भी सकते हैं, ऐसा कोई बिल्कुल दिक्कत। कर सकते हैं, मगर दिन दिन में। हाँ, दिन में हम तो जानते हैं कि आप रात में बात नहीं करते हैं। नहीं, मैं रात में बात नहीं करता हूँ। हाँ मैं बहस और मुबाहिसा नहीं करता, हाँ। ठीक है? रात में बहस और मुबाहिसा नहीं करता। बाकी मैं अपने भाइयों से बात करता हूँ रात में भी। किसी का अगर कॉल आ जाता है तो, अगर किसी देवबंदी का कॉल आ जाता है और मैं उठा लेता हूँ तो मना कर देता हूँ कि भाई मैं अभी इस वक्त फिलहाल बात नहीं करूंगा। अच्छा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं देखो भाग रहा है, बरेलवी भाग रहा है, समझे? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहो, तुम्हारा मुंह है यार, तो समझे? हम कर सकते हैं तो नहीं बात कीजिएगा। देखिए मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि आप दिन में कॉल कीजिएगा। नहीं, मतलब आप बोले कि अपने भाई से बात करता हूँ तो तो देखिए आप अभी हमारे लिए मतलब पूरे हिसाब पे खड़े नहीं उतरे हैं, क्योंकि आपके दिल में काफिरों की भी मोहब्बत है और एक तरफ तुम हुजूर का दावा कर रहे हो कि हमें हुजूर से मोहब्बत है। जब हुजूर से मोहब्बत है तो फिर काफिरों से मोहब्बत क्यों है? देखिए, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी वो हुजूर के दुश्मनों से मोहब्बत नहीं रखेगा। जिसके दिल में हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत होगी, समझे, हाँ हाँ। वो अब्दुल्ला बिन उबई से मोहब्बत रखेगा। जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत होगी वो यजीद से मोहब्बत नहीं रखेगा। नहीं। जिसके दिल में हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत होगी वो ये जो अकबर है, हाँ जिसने दीन इलाही को इजाद किया था, क्या नाम है उसका, तो उससे मोहब्बत नहीं रखेगा। ठीक जिसके है। दिल में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत होगी वो पंडित, क्या नाम है उसका, वो जो बादशाह पृथ्वीराज था, चौहान। पृथ्वीराज चौहान से मोहब्बत नहीं करेगा, समझे? समझे वो जो भी हो। और ठीक मैं है इतने तो। नाम गिना सकता हूँ हाँ हाँ बहुत। भाई, कुछ मगर लास्ट में मैं आपको कह दूं कि जिसको आला हजरत से मोहब्बत होगी हाँ। वो किसी बदमजहब वहाबी देवबंदी या जो भी फिरके वाला हो, बातिला, जो भी बातिला फिरका से मोहब्बत रखता हो, ताल्लुक रखता हो, उससे मोहब्बत नहीं करेगा वो शख्स जो आला हजरत को जानता है, पहचानता है, आला हजरत से मोहब्बत करता है। और हम आला हजरत से यूं ही मोहब्बत नहीं करते, बल्कि उन्होंने हमें इश्क रसूल की घुट्टी पिलाई है, इश्क रसूल की घुट्टी पिलाई है। हुजूर का फरमान है उस वक्त तक कि कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार, हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा, जब तक मैं उसके लिए अजीज ना हो जाऊं, मैं जब तक उसके लिए सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, सबसे ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, जब तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। ठीक है, तब रखिए जनाब। ये देवबंदी कह रहे हैं माज़अल्लाह के तमाम अंबिया औलिया जर्रा नाजिस से कमतर हैं, चमार से ज्यादा जलील हैं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी बात का इख्तियार नहीं माज़अल्लाह। नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है माज़अल्लाह। अब भी कोई नबी पैदा हो सकता है देवबंदियों के नजदीक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी कोई और रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है माज़अल्लाह। खुदा झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह। ऐसे ऐसे नापाक अकीदे हैं इन लोगों के भाईजान। क्या ये चलिए, मुसलमान है? वो सब छोड़िए आप। फिर वही बताइए। बात यार, मैं अपने नबी की शान अजमत बता रहा हूँ, खुदा की जो है तारीफ कर रहा हूँ, खुदा के लिए जो इन्होंने झूठ बांधे उसको बता रहा हूँ। आप कह रहे हो छोड़िए यार। नहीं, मतलब हम ही बोल रहे हैं ना कि आप बोल रहे थे कि इसका कॉल आ रहा है, तो इसलिए अगर तो मैं फिर असल में आपको बात बता रहा हूँ पर बात अधूरी रह जा रही है, इसलिए मैं दूसरा टॉपिक बता रहा हूँ। मैं दोनों रुख समझाने की कोशिश करता हूँ इंसान को। बात हाँ, समझ में आए बेहतर तो है, ना इसको समझ में भी- आए तुम्हारा काम, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बात खत्म होगी। मेरा ये जो काम बात इस्लाह हो करना। रहा है इसको फिर डालिएगा, क्या कीजिएगा? डालेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। इस्लाह की बात हुई है ना, इस्लाह क्या की बात हुई है जरूरी? ना। ठीक है, तो क्या जरूरी है कि एकदम डालना? सो ये तो आपका मर्जी, अभी नहीं तो डाल भी सकते हैं, डालिए डालिए। अभी तो आपकी तीसरी वाली ऑडियो भी नहीं पड़ी है, ये चौथी ऑडियो हो गई है जनाब आपकी। कोई देखेगा समझे? बोलेगा बहुत बात करता है इसे बोल के। अल्लाह अकबर। भाई बस ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी को इसके लिए
तय कर लिया है और मैं किसी को कॉल नहीं करता, बल्कि तमाम देवबंदी बदमजहब बदअकीदे मुझे ही कॉल करते हैं। हालांकि मुझे कॉल करते मुझे बुरा नहीं लगता, मैं बुरा नहीं मानता, मगर मैं जब किसी देवबंदी को कॉल करता हूँ ना तो मुझे बताता है कि तू फसादी है, तू ये है, तू वो है, तेरा काम ये है, तू लोगों को परेशान करता है कॉल करता अच्छा है। एक मिनट सुनिए। एक मिनट, पहली बात तो मैं किसी को कॉल नहीं करता, कॉल करता भी हूँ तो मैं किसी आम इंसान को नहीं करता, बल्कि बड़े से बड़े मुफ्ती को कॉल करता हूँ मैं, समझे। जो मेरी नजर में आता है कि आलिम है, ये मुफ्ती है, ये शायद सलाहियत के साथ बात करेगा, मगर वो भी इतना बड़ा जाहिल होता है कि आप भी बहुत अच्छी बात कर रहे हो, समझे, आप भी बहुत अच्छी बात कर रहे हो, मगर वो ऐसी जहालत दिखाता है कि जो बेचारा एक नंबर का जाहिल होगा ना वो भी इतनी बड़ी जहालत नहीं दिखाएगा। इनके बड़े बड़े मुफ्ती ऐसी जहालत दिखाते हैं। अच्छा दीन को जैसे आप बात करते हैं, तब आप बताते हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं, तो कैसे इतना टाइम मिल जाता है दीन को फिर आपको? मेरे भाई, मैं खाली वक्त में बात करता हूँ, काम के वक्त बात नहीं करता जनाब, ठीक है। हाँ। खाली वक्त में बात करता हूँ, जब मुझे टाइम होता है तो बात करता हूँ, वरना नहीं करता हूँ। बात खत्म हो गई, मैं मना कर देता हूँ कि भाई मुझे टाइम नहीं है, या अभी मैं बात नहीं कर सकता, मैं अभी बिजी हूँ, आप थोड़ी देर बाद में करना कॉल, ठीक है। या मैं फ्री हो गया तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, बोल देता हूँ, समझ गए। हाँ। फिलहाल अभी तो 4-5 महीने से बस बहुत ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी फरमाए। जरूर। हाँ, ये लॉकडाउन की वजह से। हाँ, तो तब तक मगर मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरोसा है। हाँ समझे? भाई, कैसे नहीं, हाँ, एकदम जरूर, अल्लाह ही सबको दे रहे हैं। बस। अरे यार खाली है, कम से कम अपने नबी की शान आजमत बताते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो क्या बेटा? दीन, हाँ, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो सिखाया है, ये इल्म दिया है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम पे जो है ये मेहरबानी है, आता, ये जो हमें चीजें या इल्म जो अता किया है, कम से कम लोगों तक बात पहुंचा दें यार। हाँ ठीक है, मेरा इधर एक लड़का आ गया। क्या बेटा? अच्छा ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं है। हाँ, छोटा बच्चा है, बोल रहा है पानी दो, घर में कोई है भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो पानी दे दीजिए उसको। हाँ ठीक है, रखिए। हाँ, मगर ये शिर्क तो नहीं हो जाएगा ना, गैरुल्लाह से मदद मांगना ये शिर्क है देवबंदियों के नजदीक। छोड़िए सबको, पानी खुद भी ले सकता है वो। सुनिए। हाँ, कहा आप बोलते हैं फिर? यार मैं घुमा देता हूँ बात को, समझ गए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आपका एक चीज गलत है। फिर वही बात मैं पूछ रहा हूँ यार आपसे, उनका आप मतलब उगलवाना चाहते हैं। अरे भाई मैं बता रहा हूँ आपको, उगलवाना चाहते हैं। नहीं, उनका अकीदा आप देख लीजिए, उनका अकीदा पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद तलब करना ये शिर्क है। तो वो तो मदद के लिए आया है आपके पास, पानी के लिए आया है, पानी की मदद चाहता है। तो उसको नहीं दे रहा है, तब जा अपने से पियो सला तुम। जाओ। ये मत कहो यार, आपका बेटा है, साला थोड़ी है। कुछ भी बोल सकते हैं इसको, थोड़ा सा बेटा है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं यार, आप साला ही होता है यार। साला आपकी बीबी का भाई है, दिमाग आपकी खराब जोरू का भाई है साला, ठीक है। अभी पानी देने जाएंगे तो फिर वही वाला मसला छेड़िएगा। जाओ अपने से पियो पानी, जाओ। अरे भाई इसमें कोई शिर्क नहीं होता है। तो अभी बोल रहे सिकड़ी लगा रहे, बताइए। अरे भैया ये देवबंदियों का अकीदा बता रहा हूँ मैं आपको, भैया इसमें कोई शिर्क थोड़ी है यार। आप बोले ना जी अभी तुरंत। भैया मैं ये कह रहा हूँ कि देवबंदियों के नजदीक ये शिर्क है, गैरुल्लाह से मदद तलब करना। वो गैरुल्लाह से मदद तलब करने के लिए आया है। आप गैरुल्लाह हो कि अल्लाह हो? हम गैरुल्लाह है। तो जब गैरुल्लाह हो तो वो आपके पास पानी की मदद के लिए आया कि ना? अभी बच्चा है ना, अभी इसको थोड़ी होश है, मांग रहा है हमसे। वही बात, इमाम हुसैन को होश नहीं था, मैदान करबला में अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहे थे यजीदियों से। ठीक है, रखिए, अब इसको पानी पिला रहे हैं आप। चलिए पानी पिला दीजिए। शिर्क नहीं है, देवबंदियों के दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, ठीक है। उनके दिमाग की जो है सफाई कर दीजिए आप ही, ठीक है। हाँ, आप सफाई करने ही नहीं सक रहे जी, तो हम सकेंगे, बताइए तो। ओफो, मुझसे तो जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ ना, आप भी कीजिए सफाई उनकी। जो मुझसे आप सुनते हैं वो उनसे सवाल तो कर सकते हैं ना। हाँ, तो फिर सवाल कीजिए, उनके ऊपर ठोकिए। अच्छा, मैंने कहा था उस बात की तहकीक करें। आपने कितने मौलवियों से तहकीक की उस बात की? किस चीज का? जो मैंने आपको पहले बातें बताई थी कि अगर ये बातें मौजूद ना हो तो जो चोर की सजा वो नूर हसन की सजा। नहीं, अभी तक तो हम अगर नहीं एक हवाला गलत साबित हो जाए तो जो सबसे ज्यादा सख्त सजा हो मुझे दो। नहीं, सजा देना नहीं है, बात को समझना खाली। हाँ, बात को समझना। मैं भी तो इसीलिए बात करता हूँ यार भाई।
मैं भी तो इसीलिए बात करता हूँ यार कि लोगों के बात समझ में आए। आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम सजा देने से रखेंगे आपको? नहीं देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर मैं मुजरिम हूँ, मैंने अगर कोई गलत बात कही देवबंदियों के नजदीक, समझे, हाँ तो मैं सजा का हकदार हूँ भाई, मुझे सजा दीजिए। मैं तो खुद अपने लिए मुतय्यन कर रहा हूँ ना, मैं तो खुद कह रहा हूँ, आप तो नहीं कह रहे हो। नहीं, तो फिर मैं तो खुद कह रहा हूँ, जब बात सच्ची है तो आपको फिर हमारी बात कबूल कर लेना चाहिए, हुजूर से मोहब्बत करना चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत पर जो है वो हमला नहीं करना चाहिए। नहीं समझे? हमला नहीं है करना, एकदम बिल्कुल वो सब बेकार की बातें। हाँ, तो फिर बस अब इन देवबंदियों से आप दूर हो जाएं जल्दी से। अरे वो अपना तो क्या बोलते हैं, ससुराल भी है किसका? और रिश्ता भी है, तब कैसे दूर हो जाए? आपका? हाँ देवबंदियों से? तब फिर वही बात, देवबंदी अगर ससुराल है तो ससुराल को छोड़ दोगे तो क्या आपको रोजी नहीं मिलेगी? रोजी रोजी कब? देने वाला कौन है? आप जैसे है कि ठीक है, कभी न रोटी कभी देने तो वाला जाना कौन होगा। है? अल्लाह है। अल्लाह है ना। और अल्लाह के हाँ। महबूब से तुम दुश्मनी रख रहे हो और दुश्मनी रखने वालों के साथ रह रहे हो। अब रिश्तेदारी रहेगा तो उसको क्या करेगा आदमी, बताइए। फिर वही बात, मारो लात जूते से घुमा के, उड़ाओ जूते की नोक पे ससुराल ससुराल सब सब। आना जाना बंद। अच्छा रुको, सहाबा इकराम ने अपने माँ बापों को कत्ल किया कि नहीं किया जंगों में? हैं? सहाबा इकराम ने हुजूर की खातिर, हुजूर की मोहब्बत की खातिर जब ईमान ले आए वो लोग, हाँ तो अपने माँ बापों को कत्ल किया कि नहीं किया? जो मुशरिकीन थे, जो उसी मतलब पुराने जो है तरीके पे जी रहे थे, जो हुजूर के खिलाफ जो है जंग लड़ रहे थे, सहाबा इकराम ने उनको कत्ल किया है कि नहीं? हाँ किया है। बेटे ने बापों को कत्ल किया, दादा को कत्ल किया, नाना को कत्ल किया, और हाँ। नाना ने नवासों को कत्ल किया, पोतों को कत्ल किया, दादा ने पोते को कत्ल किया, भाई हाँ। ने भाई को कत्ल किया, बाप ने बेटे को कत्ल किया, बेटे ने बाप को कत्ल किया यार। हाँ भाई, हाँ हाँ, तो अभी के दौर में उतना नहीं कर रहा है फिर आदमी वही ना। बात, अभी दिन बदल गया क्या? नहीं, दिन तो बदला नहीं है, लेकिन दिन आदमी कयामत नहीं तक के उतना लिए, कर पा रहा है। दिन कयामत तक के लिए एक ही है ना। देखिए हूँ भी कर रहे हो यार, फिर कह रहे हो कि अभी का दिन ऐसा नहीं है। सुनिए, अब जैसे कि हमारे यहाँ का बात बता रहे हैं कि यहाँ देवबंदी देखिए बरेली सब है। दोस्त, मैं इतना अब बता सबका सकता हूँ रिश्तेदारी आपको, आना जाना लगल है, तो उसको हम क्या हाँ करें? लगल है, ठीक है आपका लगल है आना जाना, हम्म पर आप उनको आने जाने के तौर पर ही समझा तो सकते हो ना। जब वो ना समझें हम्म तो आप उनको कत्ल मत करो, सिर्फ उनके घर आना जाना तो छोड़ सकते हो ना, उनकी मोहब्बत अपने दिल से तो निकाल सकते हो ना। आना जाना कैसे छूटेगा बताइए? तो रहिए उनके साथ, मैदान महशर में जो हाल होगा वो आप जानेंगे फिर, समझे? हुजूर फरमाते हैं दुनिया में जो जिससे, हुजूर फरमाते हैं दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, मैदान महशर में उसका हक हिसाब उसी के साथ होगा, वो उसी के साथ उठाया जाएगा। आपका रिश्तेदारी नहीं है देवबंदी से? मेरे जो रिश्तेदार थे, मैंने उनके यहाँ आना जाना बिल्कुल कट कर दिया है, बंद कर दिया है। और अगर आपको यकीन ना आए तो मेरे यहाँ आ जाइए और उन रिश्तेदारों से पूछ लीजिए कि नूर हसन आपसे बोलता है कि नहीं बोलता है, तुमको सलाम कलाम करता है कि नहीं करता है, दिन में अगर 2-4 मरतबा मिले भी तो वो तुमसे नजरें मिलाता है कि नहीं मिलाता है, अरे भाई पूछ लीजिए। 100 में एक आध को आप हैं, लेकिन सब तो फिर नहीं वही है बात। वैसा। अच्छा, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के नियत से जा रहे थे कि नहीं अनजाने में? हाँ, अनजाने में तो जा रहे थे ना। मैं भी आपको अनजान समझ रहा हूँ, क्या आप देवबंदियों के नापाक अकीदे से अनजान हैं, बेखबर हैं? समझे? हाँ, आप भी अनजान हैं, नावाकिफ हैं, बेखबर हैं, आपको इल्म नहीं है। मगर उस वक्त जब हुजूर उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये खबर हुई कि नहीं कुछ तो है दीन इस्लाम में, हाँ। बहरहाल अल्लाह ताला ने हुजूर की दुआ को कबूल फरमाया और ये हजरत उमर फारूक आजम जो हैं ये हुजूर की तमन्ना है, दुआ की थी कि अल्लाह, अबू जहल का नाम भी जो है वो उमर था। अच्छा, हाँ समझे? अबू जहल का नाम उमर था? अबू जहल का भी नाम उमर था, लोग बहुत कम जानते हैं। और हजरत उमर फारूक आजम का नाम भी उमर है, उसको लोग अबुल हिकम कहा करते थे पहले। अच्छा। अबुल हकम, मगर जब से मेरे नबी ने उसको अबू जहल कहा तो जब से अबू जहल ही बन गया, समझे? हाँ अच्छा ठीक है, बचवा को हम ही खाना उना थोड़ा सा दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, खाना दे दीजिए, उसकी मदद कीजिए, ठीक है?
اس کو بولیے گا کہ میں نے جو ہے اپنے بچے کی مدد کی ہے، غیر اللہ کی مدد کی ہے، غیر اللہ نے، شرک تو نہیں ہو گیا؟ پوچھیے گا جا کے دیوبندیوں سے، دیوبندیوں سے اپنی سسرال میں جا کے پوچھیے گا کہ آپ کی بیٹی یا بہن گھر نہیں تھی مگر بیٹا مجھ سے پانی کی مدد مانگ رہا تھا کہ پانی دو پانی دو، میں نے یار اس کو پانی دے دیا، شرک تو نہیں ہوا نا؟ پوچھ لیجیے گا پھر وہ آپ کو جو ہے نا گھما پھرا کے باتیں بتائیں گے، مگر وہ کہتے ہیں جب بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں ڈائریکٹ مطلق بولتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بات صحیح ہے، پہلے آپ کو اس بات کو پوچھنا ہے۔ پھر پوچھا ارے یار میں نے تو اپنے بیٹے کی مدد کر دی یار، میں نے کھانا کھلایا، پانی پلایا یار، مشرک تو نہیں ہو گیا؟ تو پھر دیکھو کیا بولتا ہے آپ کو کہ نہیں 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 نہیں۔ ٹھیک ہے رکھیے، کال کریں گے بعد میں کبھی اور۔ چلیے ٹھیک ہے، پکا دیا میں نے آپ کو۔ دیکھیے اب، چلیے ٹھیک ہے، اچھا رکھتے ہیں۔ ٹھیک۔